did the practice? Who all did the practices yesterday? What did we learn yesterday? Who will tell me? Yes, Prasanji, boliye. About health, ma'am. Yes, we did about health and we realized how important, right? How important it How is. important health is, the various aspects of health, the physical, mental, so all the different aspects. How and I think the most important is to have the mental health because that's where it all starts. So if we believe we are healthy, I think it will lead us to having becoming healthy. Very nicely, he has understood the chapter very nicely. So that means he was listening very carefully. That is why I asked you this question because I want to see who listens carefully and understand it. Because the more you come into this practice, see, हम जैसे start किया पहले count of blessings, magic, frog, okay. Then what did we do? Relationships, right? Then we did health, and today we are coming to money. Then we will be doing the advanced chapters after, when we reach the 12th chapter on the same topics. And how we become money magnet, that would also come. So today's chapter is about money. Okay. So before we start, let's join our hand, close our eyes. Take a deep breath in and out. When you're breathing, see that you sit straight, at least for that moment. Your back should be straight, your spine should be straight. Take one more deep breath. Relax. Take one more deep breath. And exhale. When you're exhaling, say thank you, thank you, thank you. So that you're coming into the gratitude for the air you are taking in and exhaling out. So thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, that we are surrounded by such good people who are there in these practices. Thank you, universe, for bringing us into this journey so that we understand how we can create magics in our own life and heal ourselves, and how we can enlighten other people's life so that they come into the practice of gratitude and bring into their life and lighten their lights. So thank you, universe, for making me the channel of blessing so that I help and reach other people to heal themselves and enlighten themselves. Thank you. Thank you. Thank you. Today you could hear the song. Did you hear the song? You could hear how the lyrics were. Yes, Very ma'am. touching lyrics, right? Very touching lyrics कि इतने सारे चीजें हमको ऊपर वाले ने दी है, बट हम उसका शुक्रगुजार नहीं करते हैं, राइट? हम बोलते हमने कमाया, हमने किया, हमने किया। हम कमाने को जाते हैं, हम खाना बनाते हैं, तो ही मेरी फैमिली खाना खा पाती है, राइट? हम सब यही बोलते हैं कि हमने किया, बट वी डोंट अंडरस्टैंड देयर इज अ पावर अप। फिर वो आप उसको अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, जीसस बोलो, हनुमान बोलो, कृष्णा बोलो, जो आप मानते हो, बट देयर इज दैट पावर अप विच इज वर्किंग बिहाइंड यू, एंड दैट पावर इज विद इन अस ऑल्सो। हमारे अंदर सब कुछ है, बट हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं, बाहर ही ढूंढ रहे हैं, बाहर ही ढूंढ रहे हैं। हमारे पास सब है, राइट? बट हम क्या करते हैं? उल्टा रास्ता लेते हैं, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, राइट? वी आर लुकिंग एट आउटसाइड अस एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट हैप्पीनेस, वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि जो है वो सब बाहर है, बट जो भी है ना वो सब अंदर है, अंदर। नाउ टुडेज चैप्टर is about money. Very interesting chapter if you understand the concept कि हम पैसे को क्या बोलते हैं।
द वेरी फर्स्ट डे आई हैड टोल्ड यू कि हम सब एनर्जी है, राइट? हम सब एनर्जी है, और बिकॉज हम सब एनर्जी है, हर चीज हमारे सामने जो आती है वो एनर्जी है, राइट? वो सब एनर्जी है। वो वेदर आपका खाना है, आपका पानी है, आप आपके सामने जो बंदे आते हैं, या आपका पैसा है, राइट? वो भी एनर्जी है। आपको आज वो समझ में आएगा, उसके लिए मैंने बोला था कि आपको करेंसी नोट एक रखना है, और अगर आपने नहीं लिया तो प्लीज अभी ले आइए, और एक चिट ऑफ पेपर रखना है, एंड वन मार्कर और स्केच पेन। कौन सा भी करेंसी का नोट, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, जो भी हो, बट कीप इट विथ यू। बिकॉज आज हम वो समझने वाले हैं कि हमको पैसा किस चीजों से मिलता है, एंड हम पैसे के बारे में क्या बात करते हैं, राइट? How many of you have good health? How many of you have money? पैसा है आपके पास अभी के लिए, खाने के लिए, कल का खाना लाने के लिए, कल का दूध लाने के लिए पैसा है आपके पास? आपके पास गुड हेल्थ है अभी? इवन इफ योर वन एरिया इज नॉट वर्किंग, अगर आपके पास एक एरिया आपका काम नहीं भी कर रहा है, बाकी के अच्छे काम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपके पास अच्छे रिलेशनशिप है, तो आप अंबानी हो। अपने आप को लिख डालो कि मैं अंबानी हूं। आज लिखो, मैं अंबानी हूं क्योंकि मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मेरे पास पैसे है कल के खाने के लिए, मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, तो मैं अंबानी हूं, राइट? बिकॉज यू आर रिच ऑलरेडी। बट अबंडेंस हमको दिख नहीं रही है, वो अबंडेंस हमको दिख नहीं रही है, बिकॉज हम वो चीज में अलर्ट है ही नहीं। तो आज देखिए ये पिक्चर में वो बता रहे हैं कि कैसे पैसे बाहर आ रहे हैं, हाउ अबंडेंस इज कमिंग इन टू योर लाइफ। एंड आज बोलो कि मैं रिच हूं। राइट दिस अफर्मेशन, आई एम रिच। फील करके लिखो, मनी इज कमिंग टू मी, मनी इज माई फ्रेंड। लिखो ये, क्योंकि जब आप इसको बोलना शुरू करोगे ना, तो ही आपको वो रिचनेस भी फील होना शुरू होगी। जब आप बार बार आईने के सामने तैयार हो रहे, आप बोल, अरे आई एम द रिच। शाहरुख खान बोलता था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और उसने बेस्ट होके दिखाया, राइट? सेम वे, इफ यू से आई एम रिच, आई एम रिच, योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग टू टेक दैट टाइप ऑफ एक्शंस। ओके? आपका माइंड सेट, आप बोलोगे आई एम रिच, तो पैसा ऐसे आएगा नहीं ऐसे, बट आपके एक्शन उस तरफ आने शुरू हो जाएंगे कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। और पैसा सिर्फ उस कमाने से नहीं आता, ये भी आपको समझ में आएगा। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस। अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो लिख डालो कि मैं अंबानी हूं। अगर आपने आज तक 4-5 दिन जो अटेंड किया है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिसेस चालू कर दी है, तो आप लिख दो कि मैं अंबानी हूं। कंप्लेंट इज पॉवर्टी। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, अगर आप आपके नेबर को देखते हो और उसकी गाड़ी को देखते हो, तो आपको अगर लैक वाली फीलिंग आ रही है, और आप बोलते हो हाँ उसने तो क्या ब्लैक के पैसे डाल के ही कमाया, ये कार लेके आया है, अरे वो तो कर्जा करके बैठा है, तुझे पता नहीं, वो तो कार ले आया पर उसके दिमाग पे कर्जा है। अगर आप ये सब बातें कर रहे हो, अरे बाजू वाली है ना, उसका हस्बैंड तो रोज उसको शॉपिंग के लिए लेके जाता है, उसके पास तो हीरो का हार है, उसके पास तो बहुत पैसे है। अगर आप ये सब जलन, एनवी, यू नो कंपैरिजन, आप ये अगर कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास लैक है, यू रिमेम्बर मनी, मनी आपके पास कभी नहीं आएगा। आज आप देखो आपके पास कहाँ पे कमी है, तो आज आपको खुद ही ये चैप्टर के द्वारा ध्यान में आएगा कि आपने पैसों को कहाँ कहाँ नेगेटिव एनर्जी दी है। अगर आप चिंता करते हो हर बार, अरे कल तो, आज तो सिर्फ 100 रुपए है मेरे पास, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास, अगर आप ये सोच रहे हो, तो आप पैसे की तौहीन कर रहे हो। पता है तौहीन क्या होता है?
ये शब्द सुना है, उर्दू शब्द है ये, तौहीन करना। सुना होगा, कौन बताएगा? इंसल्ट। यस, इंसल्ट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट। और आपको ऐसा लगता है पैसे को क्या फर्क पड़ता है, उसको कैसे समझ में आएगा डिसरिस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं? यस, टुडे व्हेन यू रीड दिस चैप्टर आपको समझ में आएगा। अभी आपको वो भी ध्यान करना है कि विच थिंग्स आर टेकिंग मी डाउन। ऐसी कौन सी चीजें मेरी लाइफ में हैं जो मुझे नीचे की तरफ लेके जा रही है? मेरे पड़ोसी के पास कार है तो मुझे जलन फील हो रही है। आपकी फीलिंग्स को चेक करो कि जब आपको कोई ऐसा आके नेबर शेयर करता है या कोई आपका रिलेटिव आके शेयर करता है, अरे मैंने तो आज फैक्ट्री खरीदी, पता है, मैंने आज 50 करोड़ की फैक्ट्री खरीदी, आपके मन में क्या फीलिंग आती है? चेक करो उस टाइम पे, आफ्टर डूइंग दिस टुडेस चैप्टर, कि आपके मन में उस टाइम पे क्या फीलिंग आती है। आपको जेलस फील होता है, या आप उसको, ये किसने, इसने कैसे कर लिया, अरे बाप रे, जरूर कुछ तो भी घपला मारा रहेगा उसने, उसके लिए उसने कर लिया, राइट? दिस फीलिंग विल, इफ इज कमिंग, देन यू आर नॉट गिविंग राइट एनर्जी टू द मनी. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, fearful about money can never bring more money to you. आप जितनी चिंता करोगे कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे आपके पास। बट आप जब बोलोगे ना मेरे पास बहुत है पैसे, मेरे पास पैसे बहुत है, कभी अगर आपको किसी को पेमेंट भी करना होता है ना, कभी ऐसे मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है। वेदर यू आर इन अ बिजनेस और आपको आपकी मेड को भी पेमेंट करना है ना, आप अगर आपकी मेड भी आके आपके पास पैसा मांगती है, या आपका एम्प्लॉय या स्टाफ आपके ऑफिस में किधर, आपके बिजनेस क्लाइंट कोई आपके आके पैसा मांगते हैं, उसको ऐसे मत बोलिए मेरे पास पैसे नहीं है। आप बोलिए मेरे पैसे आने वाले हैं, मैं कल परसों दे दूंगा आपको। बट ऐसे मत बोलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो दैट यू हैव लॉट्स ऑफ मनी। यू हैव लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज दोज फीलिंग्स कम फ्रॉम द लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव, कंप्लेनिंग अबाउट मनी, ओके, आर्गुइंग अबाउट मनी, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, अपने हस्बैंड से झगड़ा करना, आप तो मुझे ये लेके नहीं देते हो, आपकी वाइफ को बार बार ये बोलना कि तुम बहुत पैसे खर्चा करती हो, these all are complaints about money, and we should stop that now. We should stop getting frustrated about money, being critical of the cost. भाजी वाले को बोल दिया भैया तुम तो बहुत दाम लगाते हो, आप तो डबल दाम लगा रहे हो, आप तो लूट रहे हो, आपने शब्द इस्तेमाल कर दिया, लूट रहे हो। आपके शब्दों पे ध्यान देना, आपने उसको बोल दिया लूट रहे हो, जबकि वो लूट नहीं रहता है, वो अपनी कमाई कर रहा रहता है, राइट? अगर आपने उसको आज ऐसे बोला ना, तो कल ध्यान रखना आपको भी कोई आके ऐसे ही बोलेगा कि आप लूट रहे हो आपके काम में, राइट? तो ये भी ध्यान रखना कि आप मनी की तौहीन कहाँ पे कर रहे हो। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लिया और आप बोलोगे अरे बाप रे, आपने आपके बच्चों को जाके बोला अरे आप एसी इस्तेमाल कर रहे हो, इतना बिल आ रहा है। मैं करती थी पहले, जब मेरे को 5,000 बिल आता था, बट आई रियलाइज व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। सी द फैसिलिटी यू आर गेटिंग, लुक एट द फैसिलिटी यू आर गेटिंग। उस, अगर वो सर्विस नहीं होती तो हम गर्मी में मर रहे रहते, राइट? तो मेरे बच्चे सुकून से तो सो रहे हैं। पैसा तो सर्कल होता है, द मोर यू डू सर्कल ऑफ मनी यू विल गेट द मनी। आई टेल यू व्हाट इज सर्कल ऑफ मनी ऑल्सो. So getting frustrated about money, making someone else feel about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve. It will worsen. और खराब होती जाएगी आपकी हालत। नो मैटर, आज ध्यान करना आपके एरिया में, मनी के एरिया में कहाँ पे आपके पास कमी है। फिर आपको ध्यान आएगा आपने कौन सी चीजों के लिए नेगेटिव एनर्जी दी है। नो मैटर व्हाट योर करंट सिचुएशन, द वेरी थॉट दैट यू डोंट हैव इनफ मनी, हम कितनी बार बोलते हैं जा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? बोलते हैं ना हम कितनी बार, राइट, कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? वी डोंट हैव टू यूज दोज वर्ड्स। हम हमको अगर कुछ समझाना भी है ना, तो लर्न टू यूज द राइट वर्ड्स, डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स. So you have to get your current situation out of your mind.
and instead feel grateful for the money you do have, so the money in your life can magically increase. अगर आज आपके पास 100 रुपए भी है ना, तो बोलो वाओ, वो 100 रुपए को देख के बोलो आज मेरे पास 100 रुपए तो है, किससे में वाओ, मैं कल दूध तो ले आऊंगा, मैं कल भाजी तो ले आऊंगी, राइट। आप इतना भी बोल दिया ना आपने, और थैंक यू बोल दिया ना वो पैसे के लिए, आप देखोगे आपके पास ऑटोमेटिकली सब चीजें आना शुरू हो जाएगी, और ये गारंटी है। whoever has gratitude for money will be given more। और पैसा किसको नहीं चाहिए, राइट, वी ऑल वांट मनी। एंड आई बिलीव कि जिसके पास पैसा है ना, वो फिर बाकी की सब चीजें कर भी सकता है, तो उसकी लाइफ बैलेंस रहती है। क्योंकि मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप अब भिखारी को जाके बोलोगे आजा भाई ग्रेटिट्यूड कर ले, वो नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, उसके पास वो समझ नहीं है। तो उसके लिए पहले रोटी कपड़ा मकान है। whoever has gratitude for money will be given more। बट जिसके पास है, भले थोड़ा है, भले हम अंबानी जैसे इतने रिच नहीं है, और अगर हम अंबानी की शादियों के टाइम पे भी बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे थे, उन्होंने फालतू में पैसा खर्चा किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, हमको क्या लेन देना है, उनके पैसे है। why are you giving negative energy to the money by saying? सो डोंट डू दैट। दूसरे के पैसों को देख के जलन, वरी, एनवी, कंपैरिजन करना छोड़ दो आज से। ऐसे सोचो ही मत कि उसके पास, आप अपना फोकस रखो, मुझे क्या चाहिए पैसे के एरिया में, मुझे कितना पैसा कमाना हर महीने, आप उसके ऊपर फोकस लाना शुरू करो। सो whoever does not have gratitude for money, even what sorry even what she or he has will be taken from him or her। feeling grateful for the money when you have very little is challenging for anyone, but when you understand, see she's saying it is challenging, बट हमको वही तो चैलेंज पार करना है। क्योंकि जब हमारे पास कमी होती है ना, तो तब हमारे मुंह से शुक्रिया नहीं निकलता है, क्योंकि हम सिर्फ, हमारा फोकस लैक के ऊपर चला जाता है कि हमारे पास वो चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है। तो हमको वही चैलेंज फेस करना है। बट वेन यू अंडरस्टैंड दैट नथिंग विल चेंज अंटिल यू आर ग्रेटफुल, यू विल बी इंस्पायर्ड टू डू इट। मुझे एक, आप चिंता करोगे, आप गुस्सा करोगे, आप वरी करोगे, तो क्या पैसे आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। अगर आपके ऊपर कर्जा है, डेब्ट है, लोन है, राइट, अगर आप उसको लेके टेंशन लेके बैठे रहोगे कि मुझे देना है, मुझे देना है, और यू नॉट ग्रेटफुल फॉर द मनी, तो आपको लगता है कि आप वो लोन चुका पाओगे? The subject of money can be very tricky one for many people, especially when they don't have enough। जिसके पास ज्यादा enough नहीं है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। So there are 2 steps to the magic money practice। It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day। That is why we do this book in the morning। कि आप दिन में करोगे, सुबह में करोगे। तो पहले के लोग, आप देखते थे दिवाली में लक्ष्मी को पूजते हैं, राइट, बहुत सारे दुकानदार अपने नए खाते बनाते हैं, लक्ष्मी माता को रखते हैं सामने, ऐसे मनी को रख के फिर उसको पूजा की जाती है। क्यों करते थे ये? देखो मारवाड़ी लोग कितना, आप देखोगे ऐसा लेते पैसे को, ऐसे चुम के अंदर गले में डालेंगे। कौन से भी बनिए की दुकान में अगर मारवाड़ी रहेगा ना, आप आज भी जाके देखना, वो ऐसे लेता है, ऐसे चुमता है, और फिर वो अपने गले में डालता है, राइट। व्हाट डू दे डू दैट? दे आर बीइंग थैंकफुल फॉर द मनी। थैंक यू अगर आप नोट करोगे ना, तो सब जगह पे आप देखोगे, आप जब डीमार्ट में जाते हो, राइट, आपको बिल दिया जाता है, उसके ऊपर भी वो स्टैंप लगाते, थैंक यू कम अगेन। तो वो आप अपने क्लाइंट को ये बोल रहे कि हम, आप, थैंक यू, शुक्रिया, आप हमारी दुकान में आए, एंड कम अगेन। सो दे आर ऑलरेडी अट्रैक्टिंग बिजनेस। रिमेंबर दैट, दैट इज द वे ऑफ अट्रैक्टिंग बिजनेस। बिकॉज जब तक आप अपने क्लाइंट को थैंक यू नहीं बोलोगे ना, आपके जो भी क्लाइंट आपकी दुकान में भी आ रहे हैं, अगर आप उसको थैंक यू नहीं बोलोगे, अगर आप कोई पार्लर का बिजनेस करते हो, अगर घर पे कोई लेडीज घर का बिजनेस चलाते, पापड़ का, रोटी का, जो भी, अगर आप उसमें आपके कस्टमर्स को थैंक यू नहीं बोलोगे ना, आपके पास पैसा नहीं आएगा। अब आप बोलोगे मुझे क्यों थैंक यू बोलना है, मैं तो धंधा कर रहा हूं, मुझे तो पैसा लेना है और मेरा प्रोडक्ट देना है। नहीं, आप जितना उसको ग्रेटिट्यूड करोगे ना, वो 4 और कस्टमर अट्रैक्ट करेगा आपके थ्रू, आपके पास वो लेके आएगा। So as you recall each memory where money was paid for you,
see and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Very important question. Start writing in your journal. I'm going to say the question, you're going to write. Right? Did you always have food to eat? लिखो, did you always have food to eat from your childhood? कभी ऐसा हुआ कि आपके मम्मी पापा ने एक दिन आपको खाना नहीं दिया, या आपके ससुराल में आके आपको भले आपकी मर्जी का नहीं मिला हो पर खाना तो मिला, भले आपका चॉइस का नहीं मिला हो बट आपको खाना तो मिला? तो ऐसा कोई दिन गया? राइट, यस, नो, वट एवर इट इज. डिड यू हैव ऑलवेज फूड टू ईट? डिड यू लिव इन अ होम? आपके पास छत थी, भले किराए की हो भले रेंटल हो. राइट डाउन यस, नो. यू आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन. राइट क्वेश्चन नंबर 2. डिड यू लिव इन अ होम? सो राइट यस. रिफ्लेक्ट करो पास्ट में जाके, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किस किस चीज में पैसे भरे थे. राइट? आपको घर प्रोवाइड किया, आपको छत दी, भले आपको भाड़े की छत दी हो पर छत तो दी. कोई कोई तो लोगों को वो भी नसीब नहीं होता है, उनको रोड पे सोना पड़ता है. तो बी थैंकफुल कि मेरे पास घर तो था बचपन में. भले मैं बाड़े में रहती थी बट मेरे पास घर तो था, भले फ्लैट नहीं था बट मेरे पास घर तो था. मली मट्टी का घर था पर था. तो डिड यू रिसीव एन एजुकेशन ओवर मेनी इयर्स? ध्यान करो, आपके मम्मी पापा ने आपकी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्चा किया. Did you receive an education over many years? Right? Deeply, feel deeply. Yes, my parents paid for it. How did you travel to school each day? मम्मी डैडी ने बस के पैसे भरे होंगे. So say right, yes, I travel to school. फिर आप किससे ट्रैवल किए? राइट डाउन दैट. आपने बस से ट्रैवल किया. आपने आपने मम्मी पापा ने आपको कॉलेज में साइकिल लेके दी होगी, या बचपन में आपको ट्राई साइकिल लेके दी दी होगी कि नीचे जाके चलाओ फिरो यहां से वहां, तो आप ट्रैवल कर पाए. डिड यू हैव स्कूल बुक्स, स्कूल लंचेस एंड ऑल द थिंग्स यू नीडेड फॉर स्कूल? क्या आपके मम्मी पापा ने आपको वो प्रोवाइड किया? तब पैसे किसने भरे थे? क्या आपने स्पेंड किए थे वो पैसे? ये पैसे कहाँ से आए थे? ये पैसे हमारे पेरेंट्स ने दिए. राइट? अब किसी ने एक सेशन में ऐसे बोला था, अरे हम तो ओल्ड बुक्स लाते थे. बट उसके लिए भी तो पैसे लगते थे ना. उसको चिटकाने के लिए तो पैसे लगते थे ना, उसको कवर करने के लिए तो पैसे लगते थे ना. तो वो तो मम्मी पापा अफोर्ड कर पाते थे ना, देते थे आपको. एंड ऑल द थिंग्स नीडेड फॉर स्कूल. एंड डिड यू गो ऑन एनी वेकेशंस व्हेन यू वर चाइल्ड? आपको मामा के घर जाने को मिला, उसके पैसे किसने दिए? आपको आपके मम्मी पापा कोई मंदिर के दर्शन कराने ले गए. राइट? कोई मस्जिद के दर्शन कराने ले गए, कोई दरगाह पे ले गए, कोई किधर भी जहां पे भी आप मम्मी पापा आपको लेके गए, कोई ट्रिप, कोई कश्मीर, कहाँ, महाबलेश्वर, कौन सा भी प्लेस में आपको लेके गए, उसका पैसा किसने खर्चा किया था? ध्यान करो, ये सब पैसे आपके पेरेंट्स ने दिए. What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? जब आप छोटे बच्चे थे, आपके मम्मी पापा ने कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा आपका. हर साल नहीं किया होगा, शायद एक या दो किया होगा, या चार या पांच किया होगा, या आपको हर बार चॉकलेट्स लेके दिए होंगे कि जाओ क्लास में बांटो. और आपको गिफ्ट्स भी मिले होंगे जो घर पे आए होंगे. तो उस गिफ्ट्स के लिए पैसे किसने भरे थे?
क्या आपने उस गिफ्ट के लिए पैसे खर्च किए थे? ध्यान करो आज कि आपके पास गिफ्ट्स आए, आपको स्केच पेन्स मिले होंगे, आपको ड्राइंग बुक मिली होगी, आपको आपका फेवरेट टॉय मिला होगा, स्पाइडरमैन मिला होगा, कार मिली होगी, राइट, रिमोट कार मिली होगी। बट क्या ये गिफ्ट्स के आपने पैसे भरे थे तभी, जब आपके बर्थडे सेलिब्रेट हुए थे? फील फील किसने भरे थे वो पैसे? सो डिड यू हैव अ बाइक, टॉयज और पेट? आपके मम्मी पापा ने आपके लिए पेट लाया होगा घर पे, राइट? आपको टॉयज दिलाए होंगे, ट्राईसाइकिल दिलाया होगा। मुझे याद है कि हमारे मम्मी पापा हमको 1 रुपया देते थे और हम भाड़े पे जाके साइकिल लेते थे और साइकिल चलाते थे, राइट? तो मम्मी पापा ही पैसे देते थे ना उसके लिए। फिर कॉलेज में जाके उन्होंने मुझे साइकिल लेके दी थी। तो पैसे किसने भरे? डिड यू हैव क्लोथ्स एज यू ग्रू सो क्विकली फ्रॉम वन साइज टू द नेक्स्ट? जब आप छोटे थे, पैदा हुए, आपके लिए कपड़े आए। आप 1 साल के हो गए, आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, कपड़े आए। आपके 2 साल हो गए, आपके आप 2 साल के हो गए, कपड़े आए, राइट? 3 साल, 4 साल, 5 साल, स्कूल में गए, यूनिफॉर्म आया, सॉक्स आए, शूज आए, रेनकोट आया, अम्ब्रेला आई आपके लिए, राइट? अच्छा वाला बैग आया कि आपके बुक्स भीगे नहीं। तो ऑल द मनी वॉज स्पेंड बाय होम? ये पूरा पैसा किसने खर्च किया? रिफ्लेक्ट करो आज कि मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या क्या किया है और ये पैसे कहाँ से आए थे। सो डिड यू हैव क्लोथ्स एज यू ग्रू सो क्विकली फ्रॉम वन साइज टू द नेक्स्ट? आपके शादी होते तक आपके मम्मी पापा ने कपड़े दिए, शादी में कपड़े दिए, राइट? आपकी लहंगा चोली सिला के दी होगी, आपके हस्बैंड के दूल्हे साइड के लिए कपड़े सिलाए होंगे, दूल्हे वालों ने अपनी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाए होंगे। तो ये सब किसने किया? मम्मी पापा ने। डिड यू गो टू द मूवीज, प्ले स्पोर्ट्स? बचपन में आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाया होगा, आपको कोई समर कैंप के लिए भेजा होगा, राइट? मैं हॉकी सीखने के लिए जाती थी, मुझे याद है मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉकी सीखने के लिए शाम को भी भेजते थे एसपी कॉलेज में। तो आपको पिक्चर लेके जाते थे आपके मम्मी पापा, आपको सर्कस में लेके गए होगे, ध्यान करो। आपको मेले में लेके गए होगे, कोई मेला लगता है, जब फेयर लगता है, कोई एग्जीबिशन लगती है, आपके मम्मी पापा वहां लेके गए। उसके पैसे किसने भरे थे? डिड यू गो टू द डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन व्हेन यू आर नॉट वेल? तब किसने पैसे भरे थे जब आप बीमार पड़े थे, आपको बुखार आ गया, आपको इंजेक्शन लेना पड़ा, या आपको डिहाइड्रेशन हो गया, आपको सलाइन चढ़ाना पड़ा? तो ये सब किसने किया था? आपके मम्मी पापा ने। पैसे तो उन्होंने ही दिए थे। डिड यू गो टू द डेंटिस्ट? आपके दांत में दुखा, राइट? आपके मम्मी पापा ने उसके भी पैसे दिए। डिड यू हैव एसेंशियल आइटम्स दैट यू यूज एवरी डे, लाइक टूथब्रश, साबुन था आपके पास, सोप था, पेस्ट था, शैम्पू थी, राइट? पाउडर था, लिपस्टिक था, राइट? गर्मी आती थी तो घमोरिया का पाउडर आ जाता था घर में, राइट? डिड यू ट्रैवल इन द कार? क्या आपको कार में ट्रैवल करने का मौका मिला था आपके मम्मी पापा के साथ में? भले फिर आप टैक्सी में गए हो, बट पैसे तो उन्होंने ही भरे। आपको टोंगा में लेके गए होगे, आपको ट्रेन में लेके गए होगे, तो उसके पैसे भी तो मम्मी पापा ने भरे। सो डिड यू वॉच टेलीविजन, मेक फोन कॉल्स, यूज लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, राइट? ये सब चीजों के पैसे लगे। सो डिड यू वॉच टेलीविजन बचपन में, मेक फोन कॉल्स? वो पहले वाला ट्रिंग ट्रिंग वाला फोन रहता था ना, डायल करने वाला, राइट? तभी आपने यूज तो किया होगा कभी ना कभी। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑल दीज थिंग्स कॉस्ट मनी एंड यू रिसीव्ड देम ऑल। ये सब मिले ना आपको, तभी तो आप कमाते भी नहीं थे। बट ये सब चीजों के लिए पैसा लगता है, और ये सब चीजें आपको मिली है एट नो चार्ज, राइट? ऑल दीज थिंग्स कॉस्ट मनी एंड यू रिसीव्ड देम ऑल एट नो चार्ज। आपने कोई पैसा नहीं भरा था, आपके मम्मी पापा ने पैसा भरा था। एंड एज यू ट्रेवल बैक through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money.
आज ध्यान करो, चलो मुझे एक एक चीज बताओ, एक एक पार्टिसिपेंट एक एक चीज बताएगा कि आपको कौन सी ऐसी मेमोरी याद है कि आपको आपके मम्मी पापा ने ऐसा कुछ ऐसा करके दिया था कि उसमें आप पैसे यूज करके आपको कोई चीज लेके दी थी। जैसे मुझे याद आता है कि जब मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में थी, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था और मैं जिद पे आ गई थी कि मुझे व्हाइट फ्रॉक स्मोकिंग वाली ही चाहिए। और मम्मी मना कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे 100 रुपए की वो फ्रॉक थी, और मम्मी मना कर रहे थे। और मेरे डैडी ने फिर बाद में मुझे बोला कि नहीं तुझे चाहिए ना, चल तू आ जाना कल। और उन्होंने हमारी दुकान जो थी उनके सामने जो शॉप थी उसके पास मुझे ले जाके, जो तुझे पसंद है तू उठा ले, मैं देख लूंगा, ऐसे करके मुझे लेके दे दी थी। तो उन्होंने मेरी हर छोटी इच्छा पूरी की थी, ध्यान करो, छोटी छोटी चीजें। जितना भी टाइम आप आपके मम्मी पापा के साथ है या जो भी है, उन्होंने पैसे खर्च किए आपके लिए, राइट? एट नो चार्ज यू गॉट मनी। मनी, आप ये सब चीजों के लिए पैसा लगा और ये आपको मिला। बट कभी आपने अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोला ये सब चीजों के लिए? चलो आज अनम्यूट करो और खाली याद करो और बोलो आपके मम्मी पापा ने आपके लिए क्या ऐसी चीज लेके दी थी। याद करो, चलो, एंड अनम्यूट योरसेल्फ। Shall I say? यस। I was in first standard and वो टाइम पे वो पेन पेंसिल बहुत चलता था and I had a normal pencil, नटराज का पेंसिल था. So my mom was like, नहीं नहीं, that's too expensive, I won't buy it for you. So I told her that, mummy, if you won't give me if you won't buy that pencil for me, I will purposely fail in the exam. So she bought it the next moment for me. See how we used to emotionally blackmail also our parents, right? तो Exactly. मेरा भी वही हुआ था। यस सपना जी, एवरीवन इज गोइंग टू से कुछ तो कोई चीज ऐसी याद होगी जो आपको Ma'am, लेके दी हो। I had to literally work for everything. ओके। For everything I needed, I had to work. And whatever pocket money I received for that work, for wiping the windows and the floor and my car, my father was very rich, but my stepmother never gave me anything. I worked hard and God gave me all the things I need. Even if my father bought me anything, that was taken by my stepmother and given to my stepsister. इट्स ओके, इट्स ओके, यू बी But थैंकफुल कि but I व्हाट योर फादर received बॉट food. एटलीस्ट। I received food. I received education, ma'am. सो बी And थैंकफुल फॉर I दैट। was I didn't have good dress. In spite of my father being very rich, I didn't have proper shoe. I went with a torn shoe. I know what poverty is, but I'm still grateful I could continue my education. And even while doing law, nothing was paid from me from my house. I went to Mangalore. I studied and part-time from 1:30 to 8:30. I worked in two tutorials, डोंट and with that डोंट salary, गिव I एनर्जी, completed. डोंट गिव Allah. एनर्जी टू द नेगेटिव No, ma'am. God इमोशन। gave me the health to work and earn for my education, ma'am. Yes, so you be thankful कि you had I'm that thankful. education I'm that you thankful to could God. get that Ma'am, money, right? yesterday my Yes, stepmother called me and said sorry for all those things she did to me, ma'am. great, great. That means Because miracles I are have been happening. practicing gratitude to her also after you Yes, said. yes, very nice, very good. Prashant ji, you tell what you remember of your childhood, what your one thing what you remember your father, your mother might have bought. I think most things that I asked for, I've got. So nothing specific because as a child, I never asked for too many things. But Okay, whatever I asked, I've always got. I did not really struggle so much very childhood. good. So be grateful. I'm not saying about that you have to struggle, but you Mhm. got na, like you got, Exactly. even if Whatever you I didn't needed, ask, yes, you didn't I was ask, great. but they did Mhm. their duty by providing it to us, right? So we have Exactly. to be Exactly. thankful for that. Tahira ji, you remember anything? Absolutely. The same thing, that whatever I needed, I did not need to ask. It was always got beforehand. I received it before only. Wow, So that's what I'm really grateful for. That I never had to ask what I required. very good, so nice. रमेश जी, आप कुछ याद करो। नहीं, कोई आपकी ऐसी जिद आपके मम्मी पापा ने पूरी करी हो। कभी कभी जब हम छोटे होते हैं ना, हमने बहुत जिद, क्योंकि मुझे एक याद है, मुझे वो फ्रॉक का एक
एपिसोड बहुत अच्छे तरीके से याद रहता है, क्योंकि मेरे मम्मी ने बहुत डांटा था मुझे उसके लिए कि तूने क्यों डैडी को जाके जिद किया, एंड डैडी हैड टेकन फॉर मी, सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू माय डैडी। रमेश कुमार जी बोलिए, आपको कुछ याद आता है जी आप? मैम, साइकिल साइकिल दिलवाई थी साइकिल स्कूल वेरी, के टाइम पे। यस। तो देखिए कितना अच्छा हमारे माँ बाप हमारे लिए। मंगल मैम, आप आपको कुछ याद आ रहा है तो आप बताओ। Actually, when I was in 11th standard, my papa bought me 100 rupees ka sandal. It was amazing that time, 35 years back. 100 वाओ, rupees sandal is like something different only. या, He bought it यू for हैव, me. यस, यू Yeah, हैव टू बी वेरी I asked थैंकफुल it फॉर and दैट। he gave me. That 100 rupees matters, 35 years a lot, I think in a thousand only. But he gave me. That is really thankful for me. ग्रेट। अकीला जी, अकीला जी, यू हैव एनीथिंग टू से? यू रिमेम्बर एनीथिंग, एनी स्मॉल थिंग विच वाज बॉट? यस, अनम्यूट योरसेल्फ, click on unmute, so again you will come back. Yes. Yes, actually, I've got many things in my childhood. Actually, I was staying with my auntie, uncle, Mm-hmm. but then that they're also like, I didn't have to ask anything. I always got, they always got for me everything, whatever I needed. Very good. So now you should be Yes, thankful to your auntie uncle also. So you yes, write yes, I'm gratitude. very, very thankful. I'm very, very grateful to them. Very good. Whatever Now they you have done should, for me, it is like, it's not going only from my head like that. I'm so grateful to them. yes, now you have Always. to be very grateful. At least see, some people don't get, but then at least you got, right? So be very Yes, yes. thankful, to all the things Mm. which you have got till now. Remember that these are the blessings your parents have given you and money was required। और आज हम पैसे के लिए रोते हैं। जब हमारे बच्चे मांगते हैं ना तो हम बोलते हैं, इतने की क्यों जरूरत है आपको, क्या करना है तुमको, राइट? बट आवर पेरेंट्स ट्राई टू फुलफिल ऑल आवर विशेस। As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instant and memory, because when you can feel sincere gratitude for money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed universal law. So जब आप अपने पास्ट के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो कि मेरे पास खाने के लिए पैसे थे, मेरे पास कपड़े पहनने के लिए पैसे थे, मेरे मुझे कपड़े पहनाए गए, मेरे तो उतना मेरे पास पैसा था। अगर आपके घर में कोई आता है और वो गिफ्ट लेके आता है, तो सोचो आपने तो उसके लिए पैसे नहीं खर्च किए, राइट? आपने तो उसके लिए पैसे खर्च किए ही नहीं, बट आपके पास गिफ्ट आया तो आपको तो चीज मिल गई, बट पैसे आपने खर्च नहीं किए तो आपके पैसे बचे, बचे क्या नहीं? टेल मी, आपके पैसे बचे या नहीं? 100%. यस, आपके पैसे बच गए तो आपके पास भरपूर पैसे है, राइट? तो आपके पास बहुत पैसे है, क्योंकि आपके आपने पैसे वो सेव कर लिए। बट हम कभी वो देखते ही नहीं कि चलो भाई कोई हमको 100 रुपीज एक गिफ्ट ही दे गया, 100 रुपीज वाली। हम क्या बोलते हैं, "अरे, ये लगता है सिर्फ 100 रुपीज का होगा"। बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो आपने 100 रुपीज सेव किए। ये ध्यान करो कि मेरे वो 100 रुपीज बच गए तो मेरे पास पैसा ज्यादा है क्या नहीं, मेरे सेविंग्स में पैसा ज्यादा है क्या नहीं, वो 100 रुपीज। क्रिब मत करो, भले वो गिफ्ट आपको पसंद आए कि नहीं आए, आपको थैंकफुल होना है। जो भी बंदा आपके लिए गिफ्ट भी लाता है, बी वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन, से थैंक यू दैट यू हैव रिसीव दिस गिफ्ट, ब्लेस दैट पर्सन। So to continue with the practice of magic money, take the dollar bill and write on the sticker that you practice on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." Come on, take your note। आपका नोट आप हाथ में लोगे आज? I will just check in which book I have kept mine.
Just take your note in your hand and I'll tell you what to do. दोनों हाथों में अपने नोट को पकड़ो. Catch it. I forgot to remove mine. The book. Keep in your both hands and just keep on saying thank you for all the money that has been given to me throughout the life. Keep on saying it. Keep the money in your hand. Keep the money in your hand like that. Keep the whole note, whichever it is, 20 denomination, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, and just take it in your hand. मुझे मेरा एनवेलप नहीं मिल रहा है कि मैंने मेरा एनवेलप में रखती हूँ. See, Maria, I've got this. You can show it, please. हाँ, See. you can show it. Can you see? आपको क्या करना है अभी? पहले तो एनर्जी देनी है, right? You are taking the money in your hand. Give the energy. Say thank you for all the money that has been given throughout my life. Thank you for all the money I have been given throughout the life. And then उसके बाद आपको क्या करना है? Write that down on the chit of the paper. Come on, do it right now with me. I want you to do it right now. See, Akila ma'am is showing you that. Need a new book. Yeah. Bye. Magic book. You're going to write in bold letters. Thank you. All in bold letters, huh? Thank you for all the money I have been given throughout my life. और अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आप हिंदी में लिखोगे कि मैं दिल से धन्यवाद करता हूं या करती हूं, जो भी आपको लिखना है हिंदी में, राइट? आप लिखोगे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है. हिंदी में अगर आप लिख रहे हो, आप लिखोगे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है. एंड यू आर गोइंग टू स्टिक दैट चिट ऑन दैट नोट. अब छोटा सा सेलो टेप लोगे और उसको पीछे से रोल करोगे, पीछे से रोल करोगे, राइट? एंड देन यू आर गोइंग टू stick that paper. See, Akila ma'am is showing you. I'm not finding. I have put it in some diary of mine because when I'm going out, I carry it with me. Stick it like this. Stick it from one side. Just put a tape in between of that paper. Paper के ऊपर लिखोगे आप thank you for all the money with the marker I have been given throughout my life. If you can see on my screen, the words are there in the bold letter. और हिंदी में लिख रहे हो तो धन्यवाद उस सारे धन का जो मुझे दिया गया है. मैम, Yes. इसको स्टिक ही करना है क्या? एक एनवेलप के अंदर भी रख सकते हैं? नहीं, आप उसको, जो पेपर है ना, उसको आप थोड़ा सा छोटा सा सेलो टेप गोल करके आप उसको पूरा नहीं स्टिक करो. वो पेपर को सिर्फ बीच के भाग में आप सेलो टेप लगाओगे और उसको स्टिक कर दोगे. Stick in one corner from here, na? No, not one corner. In the between, if you keep it, that is more nice. If you put it At a in full between. thing from the middle over here. Yeah, you can from the put a middle. fellow- आपकी नोट के बीच में आना चाहिए वो पेपर. नोट को कवर नहीं Okay. करना चाहिए पूरा. That is why I wanted to show you. See, Akila ma'am is showing you, if you can see from that, because I'm trying to find mine.
मैंने कौन से डायरी में रख दिया था, कोई डायरी में। मेरे अफर्मेशंस की डायरी में चला गया था वो। Actually, I did not You can put this. see What I this. had done, no? I'm showing you. See, this is how. ये देखो मेरा दोनों साइड से ये निकला हुआ है, राइट, द पेपर। एंड आप मुझे नोट भी दिख रहा है साइड से। सो थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट द लाइफ, और नीचे उसके लिखना है 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राइट। ऐसा पेपर पे लिख के देखो आप, ऐसा पेपर पे लिख के बीच में आप देखो, मैंने सिर्फ क्या किया, मेरा देखो ये पेपर ऊपर से फोल्ड हो रहा है, मैंने सिर्फ पीछे छोटी सी सेलो टेप लगाई है और उसको ऐसे किया, और ये नोट जो है आपको पूरा साइड से दिख रहा है बाकी का। इज इट क्लियर अकीला? यू आर एबल टू सी? Yes, yes, I can see. सो आई एम शोइंग यू ऑल, एवरीवन कैन सी। इस तरीके से आप करोगे, फिर आप उसको बाद में एनवेलप में रख लो। उसको लैमिनेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। Everyone is able to see this? Shall I keep it? Okay, then you can take such envelope. Okay, you can take one envelope and try to keep this in this. Now, once you have done this, again take it in your hand. आपको इस तरीके से हाथ दोनों हाथों के बीच में रखना है, और आप उसको बोलते जाइए थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई बीइंग। और जब आप बोलते हो उसको फीलिंग करना है, फील करना है कि सच में यार ऊपर वाले ने मुझे कितना पैसा दिया है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया। पैसे को हाथ में पकड़ के रोज बोलना है आपको, सिर्फ आज की प्रैक्टिस नहीं है ये। आप जितना हो सके दिन में, जितनी बार हो सके ये दिन में आप देखो। किसी किसी ने तो आपके अपने फ्रिज पे लगा दिया था, तो मैंने मेरे पर्स में एक अलग कैरी करती हूँ मेरे वॉलेट में, और ताकि मैं जब भी बाहर रहती हूँ और मैं ऐसे निकालती ओपन करती हूँ पैसे देने के लिए, तो ये मुझे दिखता है। तो ये जब मुझे दिखता है तो मैंने बहुत अलग अलग नोटों पे बनाया, मैंने किसी किसी को, कोई दुकानदार वालों को भी जाके ऐसे नोट दिए। मैं बताती हूँ मैंने क्यों दिए। अभी आप जब ये देखोगे आप लिख रहे हो थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज बीन गिवन टू मी थ्रू आउट द लाइफ, और जब आप बार बार उसको पकड़ के आप एनर्जी देते हो कि मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो ये पैसे जो आप जो एनर्जी दे रहे हो ना, वो अंदर से खुश हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स गिविंग यू अबंडेंस। ओके, इट स्टार्ट्स गिविंग यू अबंडेंस। सो टेक योर मैजिक डॉलर बिल, वहां पे वो लोग डॉलर बोलते हैं करके हमने आपको नोट लाने के लिए बोला, ठीक है, विथ यू टुडे, एंड पुट इट इन योर वॉलेट, पर्स और पॉकेट, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times, see she's saying as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hand. This is your magic dollar, यानी हमने जो अपनी करेंसी में बनाया है। Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given throughout the life. फील भी करना है उसको देख के कि यार मेरे पास कितने पैसे हैं, हर चीज में बाय कर सकती हूँ। The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see the miraculous change to the किसको किसको 2 दिन में पैसे आने शुरू हो गए, बिकॉज उन्होंने फील करके ग्रेटिट्यूड किया। अगर आप फीलिंग ही नहीं दोगे ना तो आपको ध्यान में नहीं आएगा। फीलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, आपका थॉट, आपका एक्शन। ओके, आपका थॉट, आपका एक्शन जो भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप कौन से शब्द यूज कर रहे हो पैसे के लिए, तो आप जितनी बार उसको दिन भर आप धन्यवाद दोगे कि भाई शुक्रिया, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, आप देखोगे आपके पास पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
और भगवान ऐसा भी नहीं बोलता है कि देखो सबको रिच होना सबको पसंद है, राइट। और भगवान ऐसा भी नहीं बोलता है कि अपना मन मार के आप उसको शुक्रगुजार बोलते रहो कि भाई और मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, बट आपको चीजें मिली है, राइट। राइट, मुझे वो चीजें मिली है। सो यू विल नेवर नो अहेड ऑफ द टाइम how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money। आपको सडनली गिफ्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, आप देखना आप मेरे को कल परसों से सब शेयर करना शुरू कर दोगे कि आज मेरे को ये मिला। अगर आप अलर्ट हो, अगर आप छोटी छोटी चीजों में अलर्ट हो, अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो आपको आप ध्यान करोगे, अरे ये चीज मुझे मिल गई अचानक से, मैंने तो फिर मन में ही सोचा था। ऐसा भी होगा आपने मन में सोचा यार कोई मुझे ये रेड वाला पर्स ला के दे दे, और आप देखोगे आपकी कोई फ्रेंड आ गई, वो आपके लिए रेड पर्स लेके आ गई। ये भी ध्यान करना। सो यू विल मनी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। रिमेंबर, मनी सिर्फ कैश में नहीं आएगा। हम मनी को सिर्फ कैश में देखते हैं, बट मनी इज एनर्जी। बट लाइकली you will see the different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had and receive unexpected cash or checks। सडनली पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप आपका कबर्ड साफ करने को जाओ और वहां पे आपको पैसे मिल जाए जो आप रख के भूल गए थे। रिसीव डिस्काउंट्स, आपको सडनली आप जाओगे तो आप देखोगे आपको सामने से बोल रहे हैं हम डिस्काउंट देते हैं, आप ये ले लो, आपको रिबेट्स मिलेंगे। आपको सडनली सामने से वो आदमी बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने शुक्रगुजार होना शुरू कर दिया है, आपने शुक्रिया बोलना शुरू कर दिया। यू आर बीइंग इन ग्रैटिट्यूड, यू आर वेरी हैप्पी विद द ग्रैटिट्यूड, एंड आप फीलिंग दे के ग्रैटिट्यूड कर रहे हो पैसे को। तो आप देखोगे आपको हर जगह से डिस्काउंट और इजीली थिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल थिंग्स दैट वुड हैव कॉस्ट यू मनी। कोई आपको आके ग्लास जार दे जाएगा, कोई आपको कप का सेट दे जाएगा। आपने मन में कोई ख्वाहिश किया, यार आज मेरे पास पैसे नहीं है पर मुझे तो वड़ा पाव खाना था, आप देखना सडनली आपको रास्ते में कोई मिल जाएगा जो आपको बोलेगा अरे चल आज अपन वड़ा पाव खाते, चल मैं खिलाती हूँ। तो ये ध्यान करना, अब आपको अलर्ट भी रहना है, छोटी छोटी चीजों में मैजिक देखना है, क्योंकि हमारे साथ मैजिक्स रोज हो रहे हैं। बेसिकली हमारे रोज मैजिक्स हो रहे हैं, बट हम देखते ही नहीं है, हम ध्यान ही नहीं करते हैं, हमने अपने आप को कभी उस नजरिए में डाला ही नहीं है। सो आफ्टर टुडे यू पुट योर मैजिक डॉलर बिल इन अ प्लेस वेयर यू कंटिन्यू टू सी, and that reminds you that you are grateful for the abundance of the money you have been given, never forgetting that the more time you look at the magic dollar bill and feel grateful for the money you have been given, the more magic it will bring forth। An abundance of gratitude of money equals to the abundance of money। यानी आप जितना gratitude करोगे, I'm reading this sentence again, an abundance of gratitude यानी आप जितना gratitude पैसे को दोगे, चिक चिक नहीं करोगे फॉर मनी, इक्वल्स टू अबंडेंस ऑफ मनी। हस्बैंड भी अपनी वाइफ के साथ किट किट नहीं करेगा पैसे के लिए, और वाइफ भी अपने हस्बैंड के साथ किट किट नहीं करेगी पैसे के लिए। ना आप मेड्स के साथ में करोगे, ना आप जितना आप कंप्लेन कम करना कर दोगे ना, आप देखोगे पैसा इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आप चिक चिक करके भी पैसे दोगे ना, तो वो पैसा आप एनर्जी, गुड एनर्जी आपकी, अगर आपकी मेड को भी पेमेंट करना है और उसने बोला मैडम मला 100 रुपये जास्त द्या, मुझे 100 रुपये ज्यादा दे दो, और आपके दिमाग में आया मुझे नहीं देना, आप चिक चिक करके दोगे, तो वो उसको रास नहीं आएगा, दैट यू नॉट सेंडिंग गुड एनर्जी टुवर्ड्स दैट मनी। एंड रिमेंबर, एवरी एक्शन हैज एन व्हाट? yes मंजू मैम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। तो आप जो दोगे आपको मिलेगा। अगर आप चिक चिक करोगे, आप देखना आपको कोई आप किधर कोई चीज पे जा रहे हो ना कोई लेने के लिए, तो चिक चिक वहां पे वो दुकानदार करेगा आपके साथ में, राइट। तो आप अभी आज से आपको वो देखना है कि आप दिल खोल के पहले देना शुरू। फर्स्ट यू हैव टू गिव टू रिसीव, that is called circle of money। today I'm going to explain to you what is circle of money also। जब शुरू में आपकी सैलरी आती है या आपके घर में पैसा आता है ना,
पैसे को हाथ में लो, एनर्जी दो, थैंक यू बोलो। आप जो भी इष्ट को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, कृष्णा को मानते हो, आप उनका नाम ले लो। आपको लक्ष्मी माता बोलना है, आप लक्ष्मी माता बोल लो। आपको उसको लेना है और उसको बोलना, थैंक यू लक्ष्मी माता, थैंक यू अल्लाह, मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं आपने, थैंक यू गॉड, आपने मुझे भर भर के ये जो पैसे दिए हैं ना, आज मैं ये जहां पे भी वापरूं, मैं जिसको भी दूं, उसके घर में इतनी बरकत हो, उसके घर में इतने ब्लेसिंग्स जाए कि उसका फैमिली हर खुशी से भर जाए। जैसे आप ये चीजें बोलोगे और उस पैसे को अपने पॉकेट में रखोगे, उसके बाद आप जो भी हिसाब कर रहे हो ना, देना शुरू कर रहे हो, फिर आप उसमें से आप पैसा देना शुरू करो। और अच्छे दिल से, जो जब भी आप देते हो ना, ऐसे मत बोलो अरे तूने तो 2-3 खाड़े किए, तेरे तो मैं खाड़े काट के लेने वाली हूँ। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप क्रिबिंग विद द मेड्स। ये ध्यान करो, मेड्स हमारे लिए भगवान है। आपके पास पैसा भी होगा ना, देखो अब्रॉड में दे हैव एवरीथिंग, बट उनके पास मेड्स नहीं है, हमारे लिए वो ब्लेसिंग्स है। उनके पास बहुत पैसा है, देखो वो कितना पैसा डाल सकते हैं वहां पे अब्रॉड में, दे आर द रिच, बट स्टिल दे डोंट हैव दैट फैसिलिटी, बट हमारे पास वो तो है, तो बी थैंकफुल। हर बार किटकिट करने की जरूरत नहीं, ठीक है बहुत बार उसने कभी ये कर दिया ना तो किटकिट कर, अदरवाइज नो नीड टू डू किटकिट। देखो कभी एक आधे दिन हमारा भी दिल होता है ना खराब, तो हमारा दिल नहीं होता है पूरा, हमारा पूरा दिल नहीं लगता है हमारे काम में। ध्यान करो, कभी आपके घर में आप हस्बैंड या वाइफ के झगड़ा झगड़ा होता है और आप ऑफिस में जाते हो या आप कोर्ट में जाते हो या जो भी आप काम करते हो, आपका मन नहीं लगता होता है वहां पे। आप कर तो रहे हो काम, बट आपका पूरा माइंड वो उसमें नहीं है। ओके, तो उनके साथ में भी कभी कभी ऐसा सोचो कि आज उनका मन नहीं था बराबर से काम करने के लिए, करके उसने ऐसे किया, पर प्यार से दूसरे दिन उसको समझा दो कि भाई ऐसा ऐसा है, कल ये चीज रह गई थी, आज ध्यान से कर लेना। बट चिक चिक मत करो। और पैसे देते समय तो बिल्कुल नहीं, इवन व्हेन यू आर गिविंग इट टू द वेजिटेबल वेंडर, अगर आपको बार्गेनिंग भी करना है ना, करो। बार्गेनिंग इज नॉट रॉन्ग इफ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उसने बहुत ज्यादा पैसे लगाए, जैसे 30 रुपए की चीज है बट वो 100 रुपए बोल रहा है, आपको पता है कि वो 30 रुपए में आ रही है बाकी जगह पे, बट वो 100 रुपए बोल रहा है। आप बार्गेन करना चाहते हो ना, कि ठीक है भाई तू मुझे 50 में दे दे या 70 में दे दे या 80 में दे दे, करो। बट उस समय पैसे हाथ में मत रखो, करेंसी हाथ में मत रखो। जब आप बार्गेन कर रहे हो, आपका बार्गेनिंग हो जाता है ना, फिर आप वॉलेट में से करेंसी निकालो या अपने पर्स या जो हम पॉकेट्स रखते हैं उसमें से आप निकालो और दो। बट वेन यू आर डूइंग गिविंग मनी, डोंट गिव इट विद बैड एनर्जी, बिकॉज जब आप पैसे हाथ में लेके चिक चिक करते रहते हो ना वेजिटेबल वेंडर वालों से या किसी से, तो आप कंप्लेन कर रहे हो, और कंप्लेन पैसा भी सुन रहा है, सो मनी इज एनर्जी। सो डोंट कीप मनी इन योर हैंड व्हेन यू आर गिविंग इट टू द वेजिटेबल वेंडर और एनीवेयर, कौन से भी शॉप में आप दे रहे हो यार। और डिस्काउंट भी मांगते हो ना, तो देखो मैं तो बहुत हंस के डिस्काउंट मांगती हूँ, मैं बहुत हंस के डिस्काउंट मांगती हूँ कभी मांगना होता है तो। और आजकल तो मैंने वो भी मांगना छोड़ दिया, मैं सोचती हूँ चल भाई ले। अभी आई हैव जस्ट रीच 15 minutes बैक एट होम एंड आई हैव पुट द मैसेज कि आई एम कमिंग लाइव इन 15 minutes, आई वाज इन कैंप। मैंने 5 रुपीज मैंने मेरे पार्किंग के लिए भरे थे दूसरी जगह पे, और मैंने दूसरी जगह पे कैंप में पार्क किया मेरी गाड़ी, तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास ऑलरेडी है रिसिप्ट, तो वो मुझे बोला नहीं मैडम ये तो सिर्फ 5 रुपए की है और ये तो सिर्फ 1 घंटे लिए, आप कितनी देर बैठने वाले हो। मैं बोली मैं माजूरन में मेरी मीटिंग है तो मैं 1 घंटा बैठने वाली हूँ, अगर 1 घंटे से ज्यादा हो गया ना तो आपको 5 रुपए और देने हैं। तो मैंने उसको यही बोल के निकली, भैया 5 क्या मैं आपको 10 दे दूंगी। और मैं जब बाहर आई मैंने उसको 10 रुपए दे दिए। सो यू डोंट हैव टू आर्ग्यू एवरीवेयर, ओके, बिकॉज चिक चिक हम जो करते हैं ना छोटी छोटी चीज के लिए, दैट इज इंक्रीजिंग द कंप्लेन अबाउट मनी। मनी को एक बड़े तरीके से फील करना, जब आप वो फीलिंग लाते हो ना कि रियल में मैं रिच हूं, मैं अंदर से बहुत रिच हूं, देन यू विल स्टार्ट बिकमिंग रिच। So whether it's through your words or through your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? See, if you find yourself in a situation where you are about to complain, ध्यान करो ये सेंटेंस को, इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर यू आर अबाउट, आपको रियलाइज होगा कि अब अभी आप कंप्लेन करने लगे हो अबाउट समथिंग टू डू विथ मनी,
वेदर इट्स थ्रू वर्ड्स और थ्रू योर थॉट्स। अगर आप दिल में भी लाते हो ना कि यार ये तो मेरे को लूट रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपके थॉट में भी वो नहीं आना चाहिए। आप जितना ब्लेसिंग दे के पैसा देना शुरू करोगे ना, आप देखना पैसे आपके पास भर भर के आएंगे। जब भी आप पैसे दो उसको ब्लेस करके दो, जिसको भी दो। कोई भी वेंडर, आप कोई भी बिल भर रहे हो, ब्लेस करके दो। से थैंकफुल, आपने मुझे, आपकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। वाईफाई का बिल भरते हो, थैंक यू, आपकी वजह से मुझे वाईफाई मिल रहा है। Okay, so you will see you are getting more, and then you ask yourself that if you want to feel like complaining, am I willing to pay the price for this complaint? Because आपको ये 10 कदम पीछे ले जाएगा। For one complaint will slow or even stop the flow of money. आप आज ध्यान करना कि आपने किधर किधर कंप्लेंट की होगी ना पैसे की, आप देखना वो एरिया में आपको पैसे नहीं मिले होंगे। लेट इट बी योर सैलरी, इंश्योरेंस, कुछ भी, या आप खरीदने गए होगे। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, आप अगर जब आप ये प्रैक्टिस में उतरोगे ना, तो आपको देखना आपको टैक्स रिफंड आने शुरू हो जाएंगे। सडनली आपको गूगल पे में कार्ड आ जाएगा, ₹3 वाला कैशबैक। एंड इमेजिन ना, तो वो ₹3 को छोटी अमाउंट नहीं समझना। वो ₹3 भी जब गूगल पे में रिवॉर्ड आता है ना, कैशबैक, मैं तो ऐसे जंप करती हूँ और खुश होती हूँ और ऐसे थैंक यू। क्योंकि आप जितना थैंक यू बोलोगे ना, उतना अच्छा। और इवन बहुत बार ऐसा होता है कि हम चिल्लर इधर उधर, करेंसी जो लूज कॉइन्स होते हैं, हम इधर उधर रख देते हैं टेबल पे। प्लीज ट्राई टू टेक इट, पुट इट इन अ पॉट। इधर उधर मत रखो। एक पॉट रख लो, मट्टी का जो पॉट आता है ना, वो रख लो। मट्टी का पॉट ले लो, उसके अंदर एक मैग्नेट डाल दो और उसके अंदर ये चिल्लर डालते जाओ। आई एम गिविंग यू हिंट्स एंड टिप्स फॉर द अट्रैक्टिंग अबंडेंस। आप देखना, क्योंकि आपने वो पैसे को भी वैल्यू किया। आपने ये नहीं सोचा ये तो चिल्लर है, चल मैं इधर टेबल पे छोड़ देती हूँ। नहीं, आपको घर में जिधर जिधर आपने चिल्लर आपको मिलता है ना, या किस्से से कभी गिरता है, दैट इज योर इम्पोर्टेंट मनी। उसको बहुत थैंक यू देना है। जब भी आपको अचानक से आपके खिस्से में से भी गिरता है ना कभी कभी पैसे, क्योंकि आपको याद नहीं रहा कि आपने पॉकेट में वो पैसे छोड़े थे, ब्लेस दैट मनी। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, अपनी सैलरी को भर भर के थैंक यू बोलो। देखो आपका बॉस क्या करना शुरू करता है। और रिफंड, अगर आपको रिफंड मिलता है, और डिस्काउंट, अरे जेप्टो वाले डिस्काउंट दे देते हैं, डंजो वाले कभी डिस्काउंट दे देते हैं। हम डीमार्ट में जाते हैं, एवरी टाइम आई लुक एट द अमाउंट ऑफ द सेविंग्स आई से थैंक यू। आपको नीचे बिल में आता है कि आपने कितनी सेविंग्स की। सो बी थैंकफुल फॉर दैट कि आपको एमआरपी से कम पैसे में वो चीजें मिली। So whether it's your salary, a refund or discount or something that someone gives you that cost money, किसी ने आपको गिफ्ट लाके दे दिया, किसी ने आपको एक फ्लावर भी दिया ना, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। किसी ने एक छोटी चॉकलेट आपको दी, मेलेडी दे दी, इक्लेयर दे दी, उसके लिए भी थैंक यू हो जाओ। क्यों? कि आपने उसको ₹1 आपने तो नहीं भरा वो चॉकलेट के लिए, बट उसने आपको चॉकलेट खिलाई ना। So be thankful for that. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude. क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों में जब आप थैंक यू, यार मुझे तो आज चॉकलेट खाने को मिल गया, अरे थैंक यू आज तो मेरी फ्रेंड आइसक्रीम लेके आ गई, मेरे को आइसक्रीम खाने को मिल गई, थैंक यू आज मेरा हस्बैंड मेरे लिए आज जलेबी लेके आ गया, अरे आप उसको भी थैंक यू बोलो, राइट। अगर वाइफ ने अच्छा खाना बनाया तो हस्बैंड शुड उनकी तारीफ करो कि अरे वाह आज तो मेरी बीवी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। देखो आपके घर में लक्ष्मी कैसे चल के आती है। हम यही करना भूल गए, अप्रिसिएशन। देखो, अगर आपका बच्चा आपके पास से कुछ मांगता है, बोलेगा मम्मी दो ना, आप बोलोगे नहीं नहीं ये राइट नहीं है, अरे मम्मी थोड़ी देर मोबाइल से खेलने दो, नहीं नहीं ये राइट नहीं है। पर वो जैसे आपको लाड से बोलेगा मम्मी प्लीज यार दे दो ना, ओनली 1 आवर, आप दोगे क्या? नहीं, क्योंकि उसने आपको प्लीज करके बोला तो आपका दिल पिघल गया। उसी तरह यूनिवर्स को अगर जब आप प्लीज करके बोलते हो ना कि थैंक यू आपने मुझे इतना दिया, वो बोलते यार ये बच्चा तो मेरा बहुत मेरे लिए शुक्रगुजार होता, मैं और दूं ये बच्चे को। तो वैसे यूनिवर्स फिर अपने को ज्यादा देना शुरू करता है। तो ध्यान करो कि लाड़, लाड़ जिसको बोलते हैं ना,
वो वेरी इंपॉर्टेंट। एप्रिसिएशन किसको अच्छा नहीं लगता है, बट हमको जो चीज मिल रही है हमने उसके लिए कभी शुक्रिया ही नहीं किया। अरे पानी है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, पेंट है, आईना है, मेकअप है, सब है, क्लोथ्स है, बी थैंकफुल। अरे वो आपके हस्बैंड ने आपको ड्रेस दिलाया, खुश होके उसको थैंक यू बोलो ना। अरे एक वड़ा पाव भी खिला दिया तो थैंक यू बोलो। इट्स नॉट दैट इट इज हिज ड्यूटी ओनली टू गिव यू दैट, बट आपके बारे में सोचा, उन्होंने लेके आए, बी थैंकफुल। एंड ईच इंसिडेंट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू यूज, sorry, gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. तो आपको अभी ध्यान आएगा कितने सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर हमको थैंक यू बोलना है। पैसे कितनी जगह है, कितनी जगह हो सकता है कभी आपके ससुराल वालों ने आपको ऐसे साड़ी गिफ्ट में दी हो, कभी मम्मी पापा आ गए हो उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया हो, बहुत सारी जगह है। हमको टाइम नहीं मिलता इस टाइम पे, नहीं तो आई वांट टू सिट एंड मेक यू डू ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मे बी वी विल डू वन प्रैक्टिस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑल्सो। सो रिपीट द स्टेप्स 1 2 3 मैजिक ब्लेसिंग्स, लाइक काउंट योर ब्लेसिंग्स आपको रोज करना है। काउंट योर ब्लेसिंग में यू हैव टू राइट डाउन आई एम ग्रेटफुल टू, जो भी आपके इष्ट है, जो भी जिसको आप मानते हो, जिससे आपको फीलिंग आती है। आपको यूनिवर्स बोलने में फीलिंग आती है, आप यूनिवर्स बोलो। आपको गॉड बोलने में फीलिंग आती है, आप गॉड बोलो। आपको अल्लाह बोलना है, अल्लाह बोलो। आपको भगवान बोलना है, भगवान बोलो। कृष्णा बोलना है, गणपति बाप्पा बोलना है, जो बोलना है बोलो। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई जो भी है, एंड देन यू से आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव रिसीव फॉर दिस। किसके लिए आपने यूज किया? आई एम ग्रेटफुल टू माई बॉडी। तो आपका ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स, आप पूरे दिन को स्कैन करोगे कि भाई कल मैंने क्या क्या किया। कल मैं सुबह में जिंदा उठी, दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई बॉडी दैट आई वॉज अलाइव। आपको बिकॉज लिखना है, बिकॉज साथ में वाई यू आर अलाइव। आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज दैट आई कुड सी। आई एम ग्रेटफुल टू द मैजिकल एयर दैट आई एम ब्रीदिंग, मुझे फ्री में मिल रही है। फिर आई एम ग्रेटफुल टू माई बेड दैट आई कुड स्लीप पीसफुली। आई एम ग्रेटफुल टू माई अलार्म क्लॉक जिसने मुझे सुबह में टाइम पे उठाया। ऑल दीज आर या काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हम लिखते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो कि आपके पास इतनी नियामतें हैं, तो आप उसके लिए शुक्रगुजार हो। आई एम ग्रेटफुल टू द वाटर दैट कम्स इन द टैप दैट आई एम एबल टू टेक बाथ। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास चाय पत्ती है, कि मैं चाय बना पाती हूँ और मैं रोज उसको पीती हूँ। फील करना है साथ में, एंड देन यू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू एट द एंड आफ्टर डूइंग योर काउंट योर ब्लेसिंग्स। Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no change to you, sorry, no charge to you. बचपन से आपको कितनी चीजें मिली, अगर आप लिखोगे ना, आप मैं बोलूं, आपको इतनी चीजें मिलेगी, इतनी चीजें मिलेगी कि आधा टाइम को हमको याद नहीं आता है। बट जब हम ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्या होता है कि एक बंदा कुछ बोलता है ना, तो दूसरे को याद आ जाता है उससे रिलेटेड। उसके लिए हम ग्रुप में फोकस प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटिट्यूड का। सिट डाउन एंड राइट एंड टेक फ्यू मिनट्स दैट अबाउट चाइल्डहुड के क्या क्या चीजें आपको मिली है जिससे पैसे नहीं दिए आपने। ध्यान करो, वो पैसे कहाँ से आए थे? माँ बाप ने दिए थे, तो उनका शुक्रिया तो पहले अदा करना है हमको, राइट? कि उन्होंने हमारे साथ में कभी ऐसा नहीं बोला कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, जाओ हम नहीं देंगे। उन्होंने जैसे भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, हमको प्रोवाइड करने की कोशिश की। और हो सकता है कि हमने कभी, क्योंकि हम छोटे थे, हमने, हमारे अंदर तभी वो मेच्योरिटी नहीं थी, तो हमने ये भी नहीं देखा होगा कि हमारे माँ बाप ने किस कंडीशन में हमको वो चीज प्रोवाइड की। क्यों? हो सकता है उन्होंने अपना मन मारा हो, कोई चीज अपने लिए नहीं खरीदी हो, बट हमारे एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए हो, राइट? क्योंकि मुझे याद है जब मेरे डैडी 83 में, जब वो ये राजीव गांधी के ऊपर ये हुआ था,
तो सरदारजियों के ऊपर बहुत सारे हल्ले हो रहे थे। हमारे डैडी की दुकान के ऊपर भी किसी ने आग का गोला फेंका था, और मेरे डैडी की कोयले की दुकान थी, वो जल गई थी। एंड माई डैडी वॉज शैटर्ड। और हम तीनों भाई बहन जो बोलते हैं ना, हम जो सेविंग बैंक गल्ले बोलते हैं ना, गल्ले, आपकी गुल्लक, हम हमारा गुल्लक लेके हमारे डैडी के पास चले गए थे कि डैडी लो, हमारे पास पैसे हैं, आप हमारे पैसे ले लो। बिकॉज वी रियलाइज कि आवर डैडी हैज बीन प्रोवाइडिंग सो मच टू अस। तो रिमेम्बर, हम जब भी याद करते हैं ना छोटी छोटी चीजें, आपको आपके मेमोरी लेन में जाना, जब भी बैठो, अकेले बैठो, सोचो कितनी अच्छी जिंदगी दी आपके मम्मी पापा ने उस टाइम पे, जब पैसे नहीं थे ज्यादा, तब भी दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बट उनसे जितना हुआ उतना तो दिया। एंड आई विल टेल सपना मैम ऑल्सो, शी इज स्टिल नॉट रिकॉलिंग। एक छोटी सी भी बात अगर वो पकड़ लेती है ना, कि उनके डैडी ने उनको कुछ ऐसा कुछ किया था, या जब तक उनकी मम्मी थी, उनकी मम्मी ने उनको कुछ दिया था, आई एम टेलिंग यू, शी विल गेट सो मेनी ब्लेसिंग्स आउट ऑफ दैट। सो टेक द डॉलर बिल। मैम जैसे आपने कहा, यहाँ पावर वापस आ गया। Very good. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words. Thank you. दिल से thank you बोलना है कि बाबा, मम्मी पापा, आपने मेरे लिए ये पैसे खर्च किए. So thank you with all your heart for each instance. Take a dollar bill or other small bill and write on the sticker that you place, we did this. Okay? अगर जिन्होंने आज नहीं किया है अभी साथ में, तो प्लीज कर लेना, और वो नोट को रोज चार्ज करना है. यू कैन कैरी इट इन योर वॉलेट. आप 2 से 4 और नोट बना सकते हो अलग अलग करेंसी के भी, कि एक आप आपके वॉलेट में रखो, क्योंकि मैं एक मेरे एनवेलप में रखती हूँ, एक मेरे वॉलेट में रखती हूँ. आप आपके हस्बैंड को भी बना के ये दे सकते हो, और आपके हस्बैंड को बताना कि ये ग्रैटिट्यूड के लिए आपको फील करना है, जस्ट सिर्फ रखना नहीं है वॉलेट में. बट देख, अगर आप उनको वो कॉन्सेप्ट समझा पाओ कि हम ये ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि आज तक हमारे माँ बाप ने जो भी पैसे, या हमारे पास जो भी पैसे हमको मिले हैं बचपन से लेके अभी तक, जो भी तुम्हारी एज है, हम उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं. उनको ये कॉन्सेप्ट समझा के उनको वॉलेट में रखने दीजिए, और उनको समझाइए कि आपको उसको रोज देख के थैंक यू बोलना. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out. जिसको ज्यादा चाहिए पैसा वो ज्यादा करेगा प्रैक्टिस, जिसको कम चाहिए पैसा वो कम करेगा प्रैक्टिस. And hold the magic dollar bill in your hands and read your written words and be truly grateful for the abundance of the money you have been given. दिल से आज सोने से पहले ना बहुत चीजें याद करना. और मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब किया था मुझे तो रोना आ गया था. After today, put your magic dollar bill somewhere where you will see it every day, to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. अगर आप आपके फ्रिज के ऊपर लगा सकते हो, एक नोट बना के वहां पे भी लगा दो. अब ये मत सोचो यार उसको तो मैं खर्चा ही नहीं कर पाऊंगी. ये दिमाग में मत लाना, या मैं खर्चा ही नहीं कर पाऊंगा. वो पैसे को आपको एनर्जी देनी है, उसके लिए आप उसको बनाओगे, राइट? देते हो आप, दिवाली में भी एनर्जी देते हैं पैसों को. जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टू नाइट, होल्ड योर मैजिक रॉक इन वन हैंड and say the magic words, thank you, thank you, thank you for the best thing that happened during the day. Tomorrow is works like magic. Okay, so that is like invisible manager. Okay, so आज हमारा ये चैप्टर पैसे का था. प्रीवियस कुछ प्रैक्टिसेस या इससे कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हो. कोई क्लैरिटी नहीं है कल वाले रिलेशनशिप वाले प्रैक्टिस से, वो भी पूछ सकते हो. या आज के चैप्टर से कोई आपको फील हो रहा है कि आई स्टिल नीड टू आस्क सम क्वेश्चन, यू कैन आस्क दैट आल्सो. एनी क्वेश्चन? मैम मुझे पता है ये ग्रेटिट्यूड हमें लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करना है, लेकिन बाकी लोगों की फायदे के लिए मैं पूछ रही हूँ, क्या हमें ये कब तक करना है? आपको कब तक पैसा चाहिए? मुझे तो हमेशा चाहिए मैम, मैं डेली करूंगी. फॉर क्लैरिटी ऑफ अदर्स ऑल्सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन मैम. फॉर क्लैरिटी ऑफ अदर्स, फॉर द मनी? यस मैम. मनी, रिलेशनशिप, एवरीथिंग मैम. आपको Relationship, you said that until it is healed, we have to do it.
आपको जब तक रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, टिल यू गेट द रिजल्ट यू कीप ऑन डूइंग। ओके, जब आपका रिजल्ट मिल गया तो वो आपका थिंग पूरा हो गया, यू मूव ऑन टू योर नेक्स्ट दिस थिंग। लाइक रिलेशनशिप्स के ऊपर अभी जो हमने 3 फोटोज का काम करने के लिए बोला है, आप तब तक करो। लाइक हमारे एक सेशन में किसी ने ऐसा भी पूछा था कि हम सिर्फ 1 हफ्ते तक करें। आप सोचो, आपके रिलेशनशिप्स को आपको चार्ज करना है, पावर देना है, तो आप कितनी देर तक आपके फोन को चार्ज करोगे कि वो 100% हो जाए? करोगे ना? तो पहले आप रोज कंटिन्यूस 3 फोटोज को लेके पहले आप इनको चार्ज करो, इनके रिलेशनशिप में। सी, मैं आपको एक्सपीरियंस, आपको बिलीव कैसे बढ़ेगा जब आप इसको करोगे और वो प्रैक्टिसेस के आपको रिजल्ट दिखेंगे। हाँ यार, मैंने मेरे बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस की, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने प्रैक्टिस की, तो चेंज आना दिखना चालू हो गया, राइट? तो जब वो चेंज होना शुरू हो जाएगा तब आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, फिर आप दूसरे और 3 फोटो लेके कर सकते हो। तो पहले आप 3 फोटोज लेके आप उनके ऊपर वर्क करो। आगे जो रिलेशनशिप्स अपने बहुत खराब हो गए हैं उसका चैप्टर आएगा, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप में आएगा, जहां पे हमारे वो सिस्टर हो, इन लॉज हो, सिस्टर इन लॉ हो, कुछ भी हो, जो भी हो, जिनके साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं है, या कलीग्स हो, या ऑफिस में कोई हो, हम उनको भी ठीक करेंगे। दैट विल कम लेटर ऑन। अभी तो पावर इनको देना है, अभी तो अपना चार्जिंग इनको करना है, राइट? तो आप पहले इनको चार्ज करो, गिव द पावर टू दीज थिंग्स एंड देन यू स्टार्ट मूविंग अहेड। और जब तक पावर देना है, जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, राइट? क्योंकि अगर आपने फोन आपका 50% चार्ज किया तो कितने घंटे चलेगा? सोच लो। उतना वैसे ही है, जितना आप पावर दोगे उतने रिलेशनशिप्स आपके अच्छे चलेंगे। करंट वाले आपके रिलेशनशिप जो क्लोज आपके घर में फैमिली मेंबर्स रहते हैं, पहले उनके साथ वर्क करो, वर्क ऑन देम, टॉक। इवन इफ यू हैविंग गुड रिलेशनशिप, होता होगा ना कि कभी बच्चे उल्टा जवाब दे देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, राइट? तो वर्क ऑन दोज रिलेशनशिप्स। टीनेज चिल्ड्रन होते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं, तो वर्क ऑन दोज रिलेशनशिप्स फर्स्ट। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग पावर टू दोज रिलेशनशिप्स एंड देन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर बिलीफ, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। दैट इज वाई आई से ना कि जस्ट बिकॉज मारिया बोल रही है उसके लिए नहीं करना है, या जस्ट बिकॉज मैजिक बुक बोल रही है उसके लिए नहीं। आप जब करोगे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, तो आपको वो प्रैक्टिसेस रियल लगेगी, नहीं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिल से लग के जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिलेगा। एनीथिंग एल्स, क्वेश्चंस कमिंग इन योर माइंड, एनी शेयरिंग्स? मंगल मैम? मैम माता पिता, मैडम यस, बोलिए। मैम 3 फोटो जो आपने बताई वो माता पिता की रख सकते हैं यस, अगर आपका संबंध उनके उनके लिए? साथ इतना अच्छा नहीं है और आप चाहते हो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, या सिर्फ आप बातचीत करते हो, तो थोड़ा आप कर सकते हो, उनके ऊपर भी, माता पिता के ऊपर भी कर सकते हो। मतलब उनसे तो सबसे अच्छा रिलेशन में, और उसके बाद भी अगर आप उनकी ही उनको रख और, सकते हैं? हाँ, तो अगर आप और रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हो ना अपने माँ बाप से, मैंने बोला ना उस दिन भी कि जिनके माँ बाप अभी इस वर्ल्ड में है, जाके उनके पैर पकड़ लो, उनको शुक्रगुजार कर लो, जो भी आपके कस्टम में है आप जाके उनको मिलो, बातचीत करो उनको, अभी से मुंह से बोलो। आप नहीं लिख पा रहे हो, मुंह से बोलो कि आपने मुझे इतना इतनी चीजें दी, आपने मुझे बचपन से पाला, आपने जो भी मुझे किया, एटलीस्ट बोलना शुरू कर दो उनको। Now is the time. Take their blessings if they are there in this world. If you have said anything wrong to them, ask for forgiveness. Tell them, मुंह पे जाके बोलो कि आई डिड नॉट रियलाइज कि मम्मी डैडी आपने मेरे लिए इतना सारी चीजें की है। हग देम, वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके नहीं है ना, आज जैसे उनको रियलाइज मैम, होता है, आई सी माई पेरेंट्स राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, आई कैन स्टिल फील माई मदर्स लेग एंड हर नेल यूज टू बी लाइक दैट अप। मुझे अभी भी दिखते हैं मेरे मम्मी पापा वैसे, बिकॉज आई टू लव देम अ लॉट। तो आपको वो चीजें अभी हमारे तो नहीं है, आपके है अगर, तो गो एंड मीट देम, से थैंक यू टू देम, मैम पिता नहीं मिस है, देम। माता तो है, पिता नहीं है मैम। तो आप लिखिए आपकी मम्मी के लिए, अभी तो फिर करंट जो है ना उनके लिए करिए, आपकी मम्मी के लिए जी। करिए, अगर बीवी है बीवी के लिए करिए, बच्चे है बच्चों के लिए करिए, राइट? आपके, जी। आपको कोई कलीग के लिए करना, आप उसके लिए भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ये रिलेशनशिप में। ओके,
यस प्रशांत जी, बोलिए। हाँ सो मरिया जी, आपने जो मनी के बारे में बोला है बहुत अच्छा बोला है आपने। आई वॉज वर्किंग इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे, बिकॉज आई, आपने जो भी बोला है पूरा उल्टा था, बिकॉज आई यूज टू वरी अबाउट मनी, वरी अबाउट द इनफ्लो द आउटफ्लो। जैसे एक्सपेंस देखता हूँ, आई वरी दैट लुकिंग एट द एक्सपेंस। तो आप जो बोल रहे हो ठीक है, ट्राई करता हूँ। बट व्हाट शुड बी द आइडियल वे, राइट? जैसे कि tracking money, is it wrong? जैसे having accounts of money, is it wrong? And what when you have these sudden expenses, right? आपने foresee नहीं किया है, suddenly you see an expense, so I mean, what should be the reaction is one, but how do you control, right? How do you what should ideally be in the mind ki when you see an unexpected expense ki, okay, 20,000 The या 30,000 tracking या of whatever. expense is not at all wrong. Okay, Mhm. because there you are living in the real world and you are understanding how your expenses are going, where they are going, right? But if a sudden expense comes, suppose a medical expense comes, or your sudden anything, okay, you don't have to get worried, because Mhm. worrying takes away your mindset from the solution. Then you're not, you just say thank you, thank you, thank you for the money, and I know this is going to get resolved. Keep on saying to your mind, try this, experiment it with yourself. Good you came up with this question. I'm really very happy, because हमको worry करना natural है. We get worried, especially if you are the head of the family and you're running the household, right? So मैं जब कमाती थी, मेरे husband, I when I lost my husband, I also used to feel the same thing. मैं ही वो कमाऊंगी तो ही मेरा घर चलेगा, मैं करूंगी तो ही मेरा ये होगा, ये बिलीफ मेरे अंदर भी था. बट आई केम आउट ऑफ इट बिकॉज आई अंडरस्टूड कि जहां से यूनिवर्स को देना होता है ना, वो देता है. बट इफ यू विल वरी, यू आर गोइंग 10 steps बिहाइंड. बट yes, sudden expense comes now, so if you're worrying, you just have to be thankful. Thank you, thank you, thank you, my this situation is resolved. आप जितना अपने आप को बोलोगे, मनी इज गोइंग टू कम, मनी इज गोइंग टू कम टू मी, मनी इज ऑन द वे. आप ऐसे स्टेटमेंट्स बोलो अपने माइंडसेट को, मनी इज ऑन द वे, मनी इज ऑन माई वे. आप जितना बोलना चालू करोगे ना, आपको, आप देखोगे वो पैसे का जो आपको इशू भी आया था ना उस टाइम पे, वो रिजॉल्व हो जाएगा. Some or the other help will come. Some other one person will offer you that time. Some miracle will happen if you believe it. But you have to train your mind for that. Tracking is not at all wrong. Yes, you have to track your expenses. Where you are going wrong and right. But yes, crib नहीं करना है. कभी कभी दिल खोल के पैसा भी खर्चा करना है. सिर्फ फैमिली के ऊपर भी नहीं, अपने ऊपर भी, अपने ऊपर भी खर्चा करना है. लर्न टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन योर एनर्जी रेडिएट्स आउटसाइड. Whether it is with money, whether it is with relationship, everything. If you have good relationship with yourself, आप देखोगे आपके बाहर सब रिलेशनशिप्स अच्छे. बट अगर आप ही अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, आप अंदर से अपने आप को बहुत बड़बड़ कर रहे हो, दैट इज व्हाट वी लर्न इन द मिरर बुक, कि हम अगर अपने आप को ही बड़बड़ कर रहे हैं, अरे तू अच्छा नहीं है, तू कैसे करेगा, तू कैसे मैनेज करेगा, तू ये कर नहीं सकती, तू ये कर नहीं सकता है, तेरे से पॉसिबल नहीं होगा, अरे इतना बड़ा कर्जा लेने की बात कर रहा है, तू कैसे फैक्ट्री चालू करेगा. अगर दिस सेल्फ टॉक इज गोइंग ऑन इन योर हेड कंटिन्यूअसली, then you will never be able to come out of it. So this is a complete gratitude with your mental health, your mind, change of mindset. तो यहाँ पे जब भी, that is why I said that you put a very good question. Tracking of monies is not at all wrong, because expenses, yes, definitely you're running the household or anything, or you're running your business there, you're going to have a calculative mindset. But आप जब देना शुरू करते हो ना, आप देखोगे. So, can I ask you one personal question? What do you do? Are you working or you're having a Yes, business? I work. You're working? Mhm. You're working in a company? Yes, IT. Okay. So bless that company. Bless your company a lot. Even if it is not your dream job, even it is you're not feeling happy with that, just keep on blessing. Whenever you get your salary, you say, thank you, my boss. तेरे पास और बरकत हो. You get more and you see you will start getting more. Don't crib कि मुझे कम दिया या मेरा इतना काटा. ये whatever you have got, just take it into your hand, even if it has come into your bank account. Now look at your bank account, जहाँ पे आपको मैसेज आता है ना, salary is received. You might be getting on the normal message. हमको normal message में आता है,
कि your salary has been credited to your account, this whatever it is, look at that message और उसको ध्यान से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो और बोलो थैंक यू यार, किसी के पास तो जॉब भी नहीं है, मेरे पास तो सैलरी है. Try this. Change your mindset with saying all these things and you'll see the money. Whenever any money issue comes na, कि you have a sudden need of money, don't get worried. ऐसे बोलो अरे मुझे मुझे तो पता है पैसा आएगा, यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव मी फ्रॉम एनी हाउ समवेयर. और आप देखोगे आपका वो, जबकि आपने एक विश्वास जगा दिया और आपने यूनिवर्स को एक ऑर्डर भी दे दिया, तो वो आपका पूरा करेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि बाबा ये लड़की ने या यह आदमी ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया और बोल दिया है कि मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे देगा, तो वो आपको देगा ही देगा. बट हम वी डोंट हैव दैट बिलीफ सिस्टम, हम डाउट में आ जाते हैं. हम माइंड सेट इज सो ट्रेंड ना कि हमारे पास जो है उसको हम बिलीव नहीं करते हैं, और डाउट जल्दी जल्दी आ जाता है, अरे कैसे होगा, इतना सब कैसे होगा, अब सडन मेडिकल एक्सपेंसेस आ गया, कैसे करेंगे, राइट. ये फ्यू इयर्स बैक इवन माय माइंड सेट वाज लाइक दैट. डोंट वरी प्रशांत जी, मैं भी ऐसी ही थी. मैं हर महीने मेरा डायरी तो लिखती थी, हिसाब सबको किसको किसको देना है. एंड बिफोर आई केम इनटू मैजिक बुक ऑल्सो आई हैड दिस हैबिट ऑफ मेकिंग एनवेलप्स, कि ये महीने में सैलरी आएगी तो मेरे एनवेलप बन जाते थे, ये मेड का है, ये गैस का है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, ये कार वॉश वाले का है, ये वाईफाई का है, ये फोन रिचार्ज का है. एंड आई पुट इट इनटू द एनवेलप, बट आई नेवर गिव एनर्जी. मैं एनवलप बना के रखती थी ऐसे पहले से, बट आई नेवर गिव एनर्जी. बट नाउ आई अंडरस्टूड कि हाउ यू हैव टू गिव एनर्जी टू द मनी. आप एनवलप बनाओ कि ना बनाओ, बट व्हेन यू गेट टेक इट इनटू योर हैंड, गिव द एनर्जी, से थैंक यू, आई रिसीव दिस मनी. एंड ये जिसके पास भी जाए ना उसके घर में बरकत हो. व्हेन यू स्टार्ट सेइंग दैट यू व्हेन यू ब्लेस अदर पीपल, लॉ इज सेइंग दैट व्हाट यू गिव यू गेट. So when you will give in good energy, you will receive in good energy. You will see you will have lots of people surrounding you, and I'm noticing that people are coming around me, to help me, to support me everywhere. My children give me money. They don't ask me a single account कि मम्मी ये पैसे किधर खर्च किए तुमने. Never of both of them have any day asked me कि मम्मी ये आपने ये पैसे खर्च किधर किए. कभी बच्चा भी कोई चीज मांगता है ना, तो दे दो एक आधी बार, हर बार नहीं नहीं बोलना है, बिकॉज आप हर टाइम फिर मनी एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हो. सो ट्राई टू गिव, रास्ते में किसी ने मांग लिया, दे दो, दे दो. आई विल टेल यू, द मोर यू स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स, द मोर यू स्टार्ट गिविंग सर्कल ऑफ, हम इसको सर्कल ऑफ मनी बोलते हैं, और ये हम हर पूर्णिमा के दिन भी करते हैं कि we create a circle of money. What is circle of money is कि हम एक साथ में बैठते हैं और हमारे हाथ में नोट होती है, ओके, एंड you can do with your family members also if you can, but that needs some energy to create first. So आप पास करो वो पैसा एक दूसरे को, और जब आप दूसरे के हाथ में दे रहे हो उसको ब्लेस करते जाओ कि आई एम ब्लेसिंग यू विद दिस मनी, आई एम ब्लेसिंग यू विद गुड मनी, आई एम ब्लेसिंग यू विद abundance. Try this. Prashant ji, it's clear with you, or you have still more doubt? No, it's clear. It's clear. Clear? Not clear? Yeah. No, it's fine. Fine. Try this and experiment and let me know. Experiment it. I really want you to experiment it. Yes, Sapna ji, you have also raised. यस मैम, मैंने आपसे बोला था कि मैजिक मिरर करते हुए मैंने मैजिक मिरर को मैनिफेस्ट किया था और मुझे गिफ्ट में मैजिक मिरर आया था. और मैंने बोला था कि मैं मैजिक बुक भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ. तो आपने बोला था कि बाई इट, क्रिएट अ सर्कल ऑफ मनी. मैं सर्कल ऑफ मनी के बारे में भी पूछने वाली थी, वो आपने बता दिया. और मैंने अमेजोन में देखा तो बहुत एक्सपेंसिव था, तो मैंने अमेजोन को अवॉइड करके मैंने दूसरे एक ऑनलाइन इसमें से मैंने Yeah, ले there is लिया. e-local. There is e-local also. Very good. मैम मिला मुझे, और Yes. मुझे 860 में पूरे 6 बुक मिले हैं मैम. रोंडा बायरन के सारे बुक्स मिले हैं. Okay, और you अब got all. 869 पे किया, लेकिन जब मैं कुरियर को पैसे दे रही थी
उसी वक्त मेरा एक क्लाइंट आया और मुझे 2,000 रुपए मुझे फीस भी मिला मैम। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि सर्कल ऑफ मनी क्या होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो क्लाइंट मुझे फीस देगा, क्योंकि वो बंदा कभी पैसे नहीं देता, That is why फ्री I में said, काम na, करवा के जाता yes, था। that is why I said तो create a circle of यस मैम, money. Because when you give money to the vendors, okay, you create that circle also because you're helping them also with the business and you're giving them also money. Okay. So that comes in the return fold in your own business. वो अलग यस मैम। तरीके से आता है. Only if you're alert, now see you have become a little alert, so you're understanding कि वो कैसे आया. और ऐसे मैजिक्स बहुत होते हैं, बहुत मैम बहुत. जब भी मैंने आपके बात विदाउट सेल्फ डाउट किया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मैम। मैं रिलेशनशिप में भी ट्राई करूंगी मैम। Very good. थैंक यू सो मच। And I have 100% believe that it is going to work for you in relationship also. Don't यस worry. मैम। माँ के साथ भी अभी ठीक करना है मैम। मैंने ग्रेटिट्यूड बोला और एंड शी कॉल्ड मी यस्टरडे, शी वांट्स टू सी मी मैम। Good. That's टॉक great. मी विद फुल ऑफ लव, शी वाज टॉकिंग टू आफ्टर 2 years मैम। Great. मुझे Great. अभी बहुत Don't अच्छा keep लग any रहा है। hatred towards her. Don't keep any नो, hatred. You have to learn to forgive for yourself. The more यस मैम, you will, let go and, there you will become peaceful and happy from inside. यस You मैम, will come out of it. It यस will मैम। take time. We are peeling off the layers, na, in the mirror book, so don't worry. वेरी गुड मैम। लाइक आप मेरे गुरु ही हो, बिकॉज ऑल माय प्रॉब्लम्स, ऑल माय उलझन्स आर गेटिंग सॉल्व्ड बिकॉज आफ्टर Slowly, यू केम slowly, इन। slowly, slowly, we'll create that energy that you come out of it. Don't worry. आई एम Everything. फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी मैम। Thank गॉड you. ब्लेस यू। Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. Yes, Prashant, you can leave. No problem. Yes. Thank you. Any other question with the practices? Nothing? All clear? सबको अपनी practice समझ में आ गई? Good. Great. We'll have Mangal ma'am next time. I'll ask her to come and do her sharing. Okay? Chalo. So let's wind up. So thank you everyone for joining. गुड God नाइट। bless you all with all that you require, and may you get all the abundance in all your Thank you so areas. much. Thank you so much. May you have good health, abundance of money, amazing Thank you. relationships where you are enjoying with your family and friends, and you are happy right from inside. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So thank you थैंक यू everyone. मैम। Thank you, Thank Maria. you. Thank Thank you, you. गुड Maria. नाइट Thank मैम। God Thank you, bless you Maria. all. Thank you. Thank you, Thank Taya. you. God bless you all. Thank God you. bless you. Thank Thank you, ma'am. you. Thank God you. bless Good you too. night. Yeah, Good have a night. good night's sleep. Do your magic rock practice. Don't forget that. गुड Yes. नाइट मैम। Good night. गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sapna.